पुरानी बुराई को लेकर माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा। तभी पीछे से जित्तू अहिरवार के पिता वृंदावन अहिरवार 2 अन्य लोगों के साथ आकर माधव चराड़ को माँ बहन की गालियां देकर जान से मारने की नियत से 2 लड़कों ने माधव का हाथ पकड़ लिया एवं और वृंदावन ने मेरे हाथ से हेलमेट लेकर माधव के सिर व शरीर पर मारने लगे। तभी जित्तू अहिरवार ने बेल्ट उतारकर माधव को मारपीट करने लगे, तो मैं और नीलेश चढ़ार के साथ बीच बचाव करने लगा। तभी वृंदावन अहिरवार दोबारा से एक बार मार चुका, उसके बाद लड़के ने बेल्ट से मारा, फिर दोबारा माधव के सिर My lord, this is the first bail. My lord, this is the first bail applications, my lord, under section 439 in safe of the criminal appeal, my lord, for the offence punishable under section 341, 294, 307, 506 of IPC and subsequently added 302 of IPC, my lord. My lord, in this case, my lord, present applicant is also belong to my lord SC category, my lord. And my lord, case is like that, my lord. Name of the deceased is Madhav, my lord. And FIR has been lodged by the my lord Sunil, my lord. Allegation ये है, date of the incident is my lord 25/10/2022 शाम के 4:30 बजे से 4:40 बजे, and FIR has been lodged on the second day 26/10/2022 19:55 पे. Allegation ये है, my lord, it is the admitted fact, my lord, as the reflected from the memorandum, that the wife of the present applicants have a illicit relationship with her deceased, my lord, Madhav. And my lord, after knowing this fact, my lord, the present applicants, his sons and colleagues try to, my lord, to conversations with the, my lord, deceased, my lord. इसमें ये है, मैं पढ़ देता हूँ, my lord. गंदी गालियां देने लगे, तभी पीछे से जित्तू अहिरवार के पिता वृंदावन अहिरवार प्रेजेंट एप्लीकेंट 2 अन्य लोगों के साथ आकर माधव चड़ार को मां बहन की गालियां देकर जान से मारने की नियत से 2 लड़कों ने माधव के हाथ पकड़ लिए और वृंदावन ने मेरे हाथ से हेलमेट लेकर माधव के सिर व शरीर में मारपीट करने लगे तथा जित्तू अहिरवार ने भी बेल्ट उतारकर माधव से मारपीट करने लगा तथा करने लगे। मैं व नीलेश चड़ार के साथ बीच बचाव करने लगे। तभी वृंदावन अहिरवार ने दोबारा माधव के सिर में हेलमेट मारा। इट इज द एडमिटेड फैक्ट, माय लॉर्ड, कि आई हैव नो डेडली वेपन। ये स्पेयर मूवमेंट विवाद हुआ और इसमें प्रेजेंट एप्लीकेंट ने कंप्लेनेंट का हेलमेट, जिसकी कीमत इसमें 300 रुपए बताई गई है, उसको छुड़ा के माय लॉर्ड मृतक के लिए मारा। ये एलिगेशन है। And my lord, on this point, my lord, where the incident is, my lord, taken a, my lord, spare a movement, my lord, please find this. This is the 2021 volume 3, my lord. Alterations of conviction, PW2 and PW4 are the injured witness. Postmortem report is conclusive. Intention was to cause grievous injury, simple injury of head. Appellant number 4 P caused fracture of radius and ulna bone of hand. Other accused persons acted in furtherance of the common intention. Held conviction altered to section 323 and 326, read with 34 of IPC, my lord. And the whole reason is that the applicant in para 16 discuss, my lord, that the appellants have not any weapons and not intention to cause the death, my lord. And this is the recent, my lord, 2017 volume 2, my lord. इसमें ये देखेंगे, my lord, इसमें पैराइटल बोन पे चोट थी, माय लॉर्ड। आई हैव पैराइटल बोन पे चोट थी, माय लॉर्ड। इसमें ये है अपील अगेंस्ट कन्विक्शन एंड सेंटेंस। इट इज क्लियरली मेंशन्ड बाय द विटनेस इट वाज द अपीलेंट हर कृष्ण हु gave a fatal blow to the deceased causing a contusion on temporal regions, and Dr. so and so found the
bone below the bone were broken and brain was also found damaged. The deceased died due to the head injury. Hence, appellant was responsible to cause death to the deceased, but as discussed the above, none of the appellants wanted to kill the deceased. A quarrel started in the spare a moment when the appellant K was obstructed by deceased to pass his bullock cart from the field of deceased, and therefore it cannot be said the appellant had intended to kill deceased. Also, it bound to be apparent that there is no allegations against appellant that he reported to assault to deceased evident when he gave only a single blow to the deceased. Then it can said that the intent to kill him. However, by the single blow, that by giving such a forceful blow, he would kill the deceased, and therefore he should be liable for his overtake act and gave a powerful blow to the blow to deceased on his head, causing his death. He did not intend to kill deceased. The accused was convicted of offense under section 304 part 2 of आईपीसी माइलॉट। इसमें फिर ये माइलॉट पेज, इसमें पेज इसी का 22 देखेंगे, पैरा नंबर 22, उसमें 3 इयर्स कन्विक्शन दिया गया। हमारी कोई बुराई नहीं थी, ये एडमिटेड फैक्ट है कि मृतक ये जो थे हमारी वाइफ से इलिसिट रिलेशन थे। जब हमारा लड़का और इनको ये समझाने गया, और ऐसा भी नहीं कि वो हेलमेट हमारा हो, ये एफआईआर में है, हॉट टॉक हुई तो इसमें जो फरियादी है सुनील, उसका हेलमेट लेके हमने उसको मारा। अगर हमारी कोई मानने की इंटेंशन होती तो हमारे पास डेफिनेटली घर से हम कोई वेपन लेके जाते। माय लॉर्ड मैं एफआईआर पढ़ देता हूँ, रिलेवेंट पढ़ देता हूँ, पूरा नहीं पढ़ा था इन्होंने। जैसे ही हम लोग क्राउन पैलेस के सामने कोरेगांव मार्ग पुलिया के पास पहुंचे, अचानक गांव का ही जित्तू उर्फ जितेन अहिरवार मोटरसाइकिल से हम लोगों की मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर रास्ता रोककर सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर ली और माधव चढ़ार को जित्तू अहिरवार को पुरानी बुराई को लेकर माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा। तभी पीछे से जित्तू अहिरवार के पिता वृंदावन अहिरवार 2 अन्य लोगों के साथ आकर माधव चढ़ार को माँ बहन की गालियां देकर जान से मारने की नियत से 2 लड़कों ने माधव का हाथ पकड़ लिया एवं और वृंदावन ने मेरे हाथ से हेलमेट लेकर माधव के सिर व शरीर पर मारने लगे। तभी जित्तू अहिरवार ने बेल्ट उतारकर माधव को मारपीट करने लगे, तो मैं और नीलेश चढ़ार के साथ बीच बचाव करने लगा। तभी वृंदावन अहिरवार दोबारा से, एक बार मार चुका, उसके बाद लड़के ने बेल्ट से मारा, फिर दोबारा माधव के सिर पर दोबारा हेलमेट मारा, जो सिर पकड़कर जमीन पर गिर गया। तब ये लोग जाते समय कह रहे थे कि अब की बार बच गया, आज के बाद नहीं बचेगा। उसके बाद माय लॉर्ड इसको हॉस्पिटल ले जाया गया माय लॉर्ड, और हॉस्पिटल में माय लॉर्ड ये भर्ती रहा। उसके बाद ये भोपाल में इसको एक ट्रीटमेंट चला, और भोपाल में माय लॉर्ड ये 27 तारीख को उसकी डेथ हुई। सर यही मेन एक्यूज है, इन्होंने 2 बार मारा है। सर ने एक आईए फाइल की है डॉक्यूमेंट के साथ, जो जिनकी पहले 2 हुई है उसमें भी हमने ऑब्जेक्शन किया था, जिनकी हो गई उन्होंने बाद में हमारे एक्सीडेंट करवा दिया है। अगर इनको जमानत मिलती है तो फिर पता नहीं क्या होगा। क्या कर दिया? एक्सीडेंट करवाया सर, हमने एक आईए पेश की सर, एक डॉक्यूमेंट पेश किया हमने, हमारा एक्सीडेंट भी करवा दिया है, जिनकी 2 की हुई है पहले। अगर इनको जमानत मिलती है सर फिर पता नहीं हमारा क्या होगा। ठीक। माय लॉर्ड जिसकी इन्होंने ऐसा कहीं कोई इनका ये देख ले जो रिप्लाई इन्होंने दी है, कहीं कोई चीज ही नहीं है, और हमारा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ही नहीं, कहीं कोई वही नहीं। सर माय लॉर्ड जो जिसकी बेल ग्रांट हुई है उसको इस ग्राउंड पे बेल ग्रांट हुई है कि उसके एफआईआर में नाम नहीं है, अननोन पर्सन है। दूसरा, उनके द्वारा कोई इंजरी कॉज नहीं की गई है, और तीसरा 27 के मेमोरेंडम के आधार पर उसको एक्यूज बनाया गया है, इस कारण से उसकी बेल ग्रांट हुई है। ये मेन एक्यूज है, पूरा असॉल्ट इसी ने किया है सर। About public health, there is only from school. In the deceased, no weapons are used. In this moment accident has taken place. Because we treat that early method, travel to people so क्रिमिनल पास्ट है आपका? नो। ये
start to be fine. And we want that फिलहाल इसका prediction ठीक है अगला फाइल तो आपको नीचे आपको ये प्रेजेंट